Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Shivanshi. Fine. I think all have come. All have joined the class, I believe. Today I can see many new names as well. Chirag, can I have your camera on for a moment, Chirag? Yes, ma'am, opening. And Angad, are you there? Yes, ma'am. You also switch on the camera. Okay. So good to see you, Chirag, after so long. After how many months? And same is with Angada as well. Dekho beta, it is my humble request to all of you. Start attending your online classes. The reason being, class 10th, we had pre-boards. Many of the students, they were not in a condition even to write also. Some of them, they said, ma'am, we have just started our syllabus because we were not attending the classes. Now, because exams are approaching, so we are going to start with Good morning, ma'am. Good morning, Dhananjay. Sorry, Lavleesh. Good morning, beta. और हमें लगता है ये कंडीशन आप लोगों की भी होने वाली है व्हेन इट कम्स टू ऑफलाइन एग्जाम्स. ऑनलाइन तो चलो आप दे ही देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी उस दिन कौन बता रहा था कि किसी बच्चे ने एग्जाम जो आपके यूटीज हुए हैं, उन यूटीज में बच्चे ने इंस्टेड ऑफ राइटिंग विद पेन पूरा कट कॉपी पेस्ट करके पेपर सबमिट कर दिया. ऐसा कुछ हुआ था क्या? Was this the case? Class? No, ma'am. In one of the sections, No, ma'am. in one of the sections, one of the student had done this. And in SST only, not in my this thing, but in SST. That I don't know. I don't want to tell the name. But if it is the case, beta. Good morning, Manas. Good morning. आप लोग भाई लिखना शुरू कर दो. अगर आप नहीं लिखने की प्रैक्टिस में हैं तो प्लीज, यू नेवर नो, यू मे हैव ऑफलाइन एग्जाम्स आल्सो. राइट? चलिए. Yes, ma'am. Quickly your attendance, and then we start with what we were where we had left. Can you tell me where we had left? Ma'am, voters list, third para. Okay, with the B and A. With B and A, where were we? Hmm? Ma'am, I suppose you were explaining working of institutions from the starting. Okay, with A section or B? No, ma'am. With B, no? Okay. Got it.
How to enlarge? Click on here. ये तो fit to page हो गया. Ma'am, maximize button on the top of the window. Okay, maximize. Got it. Fine. Now it is okay. It's clear now, no? Yes, ma'am. Thank you, Viresh. Actually, 3 sections combined. I feel that way strength is very less. Strength is of just 1 class. Chalo, let it be. Acha. I think these 2 things we have done, no? What makes election democratic elections politics? What makes elections democratic? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This everybody Yes, knows. ma'am. This everybody knows, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, coming to let us start with what is our system of elections. Shivanshi, beta, with your class, when I will have individual class with you, no? That time Yes, ma'am. I'll explain from where we started. So let us start from what is our system of elections, because this chapter is all about, just a second. Is anybody? Ma'am, this हाँ, बोलो. 9C. Ma'am, we have completed this in 9C. I know, Yes, but ma'am. we'll start it again. We'll start it again because this electoral politics is all about elections only, right? So whatever previously you have learned, that I'll be asking you, and let others also know that what exactly is our system of elections, right? Okay, ma'am. Right? Give me just few minutes. Ma'am, please tell the page number. Beta, I am sharing the screen, no? So you can see it from there. Or page number you want to see. So page number is 38 of new book. Right, Dhruv? Okay, ma'am. So 9th A. Let me have a quick attendance. I think 9th A with you people, previous week I never had a class, right? Yes, ma'am. That's why I didn't remember. Wait, because I was on duty. Okay. Ninth A. Anya Gupta. बेटा ये अन्य क्लासेस अटेंड कोई भी नहीं कर रही है क्या? अभिनव पांडे. Yes, ma'am. अभिषेक. आदित्य. अजीत. बेटा अजीत है क्लास में. आकाश वर्मा. अक्षदा. अक्षत शर्मा. अनमता. अंगद. Present, ma'am. अनमता. अनमता is Present, ma'am. अनुज. आर्यन मौर्य. हरिन सिंह. आयुष सिंह. Present, ma'am. बेटा ये किसका कैमरा ऑन है? प्लीज बंद करो मोबाइल. ये अपना माइक बंद करो. किसके यहाँ पे से शोर आ रहा है? आयुष सेनगार. भूमिका पटेल. चिराग. Present, ma'am. चिराग गंगवा प्रेजेंट. हाँ. दीपशिखा. Present, ma'am. देवान सिंह पटेल. हिमांशु. हिमांशु नहीं आया आज क्लास में. कनिका. Present, ma'am. काव्यांश. खुशबू. लक्ष्य. माहीन. मानस. हसीन. Present, कैफ. ma'am. ओके. कैफ. Yes, ma'am. निखिल नेहरा. Present, ma'am. प्रियांशु सिंह.
राघव राज, शेखर शाह, विवान पटेल, यदवेंद्र। Present. यदवेंद्र की विवान। हाँ बेटा कौन Raghav present? Raj. Present. राघव राज। ओके 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 फाइन फाइन। 9th B। अभ्युदय, आकांक्षा यादव, अक्षत कुमार, आनंद कुमार, अनन्या सिंह। Present, ma'am. ओके। आराध्य, आर्यन राज, आश्रय, आयुष सिंह, भूमिका चंदानी, धनंजय। Present, ma'am. हाँ Present, धनंजय, ma'am. हर्षवर्धन, हर्षित, Present, ma'am. हयाबी, इशिका। Present, ma'am. ओके इशिका is present Present, or ma'am. who is present? हर्षवर्धन और इशिका। सॉरी कपिल। Dhananjay. धनंजय तो बेटा धनंजय। मार्क कर दिया Ma'am कर। Harshvardhan present. Ma'am Harshvardhan present. ओके ओके फाइन। Ma'am Harshvardhan present. मार्क्ड बेटा, मार्क्ड प्रेजेंट। कुलदीप, कुणाल, लवलीश, महक। Present, ma'am. ओके महक, मनित, फैज खान, नुमान, शोएब, नवजोत, रमशा, रौनित, सचिन। Present, ma'am. हाँ Present, ma'am. यस। शिवांशी इज देयर। उज्जवल, विभांशु। Ma'am. हाँ विशेष। हाँ Present, शिवांशी। ma'am. ओके Ma'am. यस शिवांशी Ma'am. बोलो बेटा। Ma'am, Akansha. आकांक्षा यादव इज प्रेजेंट यस। Ma'am, I'm also present. हाँ हाँ आकांक्षा यादव प्रेजेंट है, हमने लिख दिया, मार्क कर दिया बच्चे। चलिए कमिंग टू सी सेक्शन। Okay, ma'am. ऐजा, Present, ma'am. आकांक्षा, पूर्वा, दक्ष, ध्रुव। Ma'am, I am present, Dhruv. ओके ध्रुव इज प्रेजेंट। Yes, ma'am. फाइन। ओके वेरी गुड। ध्रुव शर्मा इज प्रेजेंट। गार्गी, गौरव सिंह, Present, ma'am. हर्ष तोमर। Present, जय, ma'am. हर्ष तोमर इज प्रेजेंट। Yes, ma'am. Present. ओके जय, जुझार, जिज्ञासा, कार्तिकेय, Present, ma'am. मलय। Ma'am, Jigyasa present. ठीक है बेटा, जिज्ञासा को मार्क कर दिया हमने। मलय, मनीष, मंथन, मोहित, मोहित कुमार, मोहित गंगवार। Present, ma'am. मोहित कुमार की गंगवार। Present, ma'am. अरे गंगवार और कुमार। Gangwar. ओके Gangwar. हाँ जी बेटा गंगवार। नैना इज प्रेजेंट। नमन, ओम, निहारिका, पावनी, प्रांजल। Present, ma'am. ओके हाउ वाज योर बर्थडे पावनी? Ma'am, it was good. Good. It is in history now. You will all be writing that, in pandemic we celebrated our birthdays. Yes. Is it? Good. Ma'am. Good. Puneet, Present, ma'am. Samarth, Zainab, Shaurya, Shreya, Srishti, Present, ma'am. Srishti Singh. Ma'am, Srishti Singh present. Okay. Srishti Gautam. Stuti. Present, ma'am. Okay. Stuti Upadhyay. Siddhant Yadav. Present. Okay. Swali Jha, Tina, Viresh. Yash is there in the class? Present, ma'am. Very good. Viresh, Ma'am you have, Viresh present. you have got a very lively voice, Just like Kanika. Kanika also has a very lively voice. Ma'am, what is the meaning of lively?
Yes, ma'am. जिंदा दिल जिसको हम बोलते हैं ना, बहुत एकदम फुल ऑफ लाइफ, लाइवली मीन्स फुल ऑफ लाइफ। कुछ लोग होते हैं ना, हाँ, ओके, ऐसे बात करते हैं, कुछ अलग तरीके से करते हैं। कुछ लोग होते हैं एकदम अलर्ट हमेशा, एंड ऑलवेज व्हाट डू यू कॉल, रेडी। हाँ, Active mode on. एक्टिव मोड ऑन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Ma'am, in one way we can say that they are present at that time. No, we are present every time, but then it is just that mentally we are somewhere, physically we are there, but then mentally sometimes we are out of what we are doing, that way. Like real classes in our school. Exactly. Okay, as all the three sections are here, do you know what is our system of elections like? I'll speak in Hindi purely so that you understand what exactly I'm asking. See, जब हमारे देश में जब चुनाव होते हैं, चुनाव आपको पता है ना, इलेक्शंस को हम बोलते हैं, तो जब हमारे कंट्री में इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस का क्या प्रोसीजर होता है? Anybody in the class except for 9C. 9C is not going to tell any of the answers which I am asking. Gargi, wait, है ना? आपने देखा होगा, देखो आप सब लोग अब क्लास 9th में हो, आप लोग पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा कि भाई जब आपके ये लोकसभा इलेक्शंस हुए, जब नरेंद्र मोदी बरेली आए थे, उस टाइम पे बहुत सारे लोग जो महानगर में रहते हैं, दे मस्ट हैव विटनेस्ड दैट सीन, कि वो आए, किस तरीके से पीपल वर ग्रीटिंग हिम, हाउ ही एड्रेस्ड दी पब्लिक ओवर देयर। तो हमारे कंट्री में इलेक्शन का सिस्टम क्या है, हम किस तरीके से इलेक्शंस लड़ते हैं? एनीबडी in the class? Ma'am, our elections are conducted on constituencies. हाँ, who is this? May I know? Srishti? Yes, ma'am. Is this Srishti speaking? Ma'am, Srishti Gautam. Okay. Who was telling this answer? Ma'am, it was me, Shivanshi. अच्छा, शिवांशी। ओके, शिवांशी, हाँ बताओ बेटा, बताओ, दोबारा बोलो। Ma'am, the elections are conducted on the basis of constituencies. Okay, what else? What are these constituencies? Electoral constituencies. हाँ, नहीं, जैसे दीपशिखा, don't do it. Erase. दीपशिखा, erase it. ये बदमाशी ना करें आप, कृपया करके स्क्रिबलिंग की अपनी कॉपीज में करें ये। हाँ जी, Sorry, ma'am. हाँ ठीक है, अगर बाय मिस्टेक है इट इज ओके, अगर इंटेंशनली है तो डोंट डू इट प्लीज। ओके, Ma'am, by mistake it was. चलो ठीक है, एग्रीड। ओके, गार्गी, Yes, ma'am. व्हाट आर दीज इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कैन यू टेल? Ma'am, it is the areas into which the whole state or country is divided on the basis of population for the purpose of election. Very good. See, whenever we say elections, we always go for two types of elections in our country, right? We have Lok Sabha elections and the Vidhan Sabha elections, right, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये इलेक्शंस जो होते हैं ये आफ्टर एवरी 5 years होते हैं, ठीक है? और ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा के इलेक्शंस जब हो रहे हैं और विधानसभा के भी तभी हो। इनकी डेट्स में वेरिएशन हो सकते हैं, इनके इयर्स में वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी भी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो उसी सेम टाइम पे चेंज हुए जिस टाइम पे लोकसभा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चेंज होती है, ठीक है? तो देयर इज नो डेफिनेट टाइम दैट व्हेन लाइक बोथ द इलेक्शंस आर गोइंग टू बी हेल्ड, ठीक है? Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा। Ma'am, I'm not able to understand about Vidhan Sabha and Lok Sabha elections. Please tell that Explain. what Okay. type of अच्छा ठीक है, हम बता रहे हैं, rulers are elected. हम बता रहे हैं। देखो, लोकसभा जो होती है बेटा, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए जब इलेक्शंस होते हैं उसको हम लोकसभा इलेक्शंस बोलते हैं। इनको हम पार्लियामेंट, like हाँ बोलो बोलो, पूछो बेटा। लाइक व्हाट?
कहाँ गए भाई? बेटा बोलो, क्या कह रहे थे बच्चे आप? लग रहा कनेक्शन आउट हो गया, चलो ठीक है। ओके, द अदर्स दोज हु आर देयर इन द क्लास, बेटा लोकसभा और विधानसभा दो तरीके के इलेक्शन, प्रोसीजर सब सेम होता है इसमें, बट ओनली डिफरेंस इज दैट कि लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो हमारे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं, जिनमें कि हम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हम इलेक्शंस करवाते हैं, ठीक है। और विधानसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उनको हम असेंबली इलेक्शंस भी बोलते हैं। और ये जो विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए आफ्टर एवरी 5 years, हर 5 साल में इन जगहों पे इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। लोकसभा के लिए भी होते हैं और विधानसभा के लिए भी होते हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग साल में होते, जैसे बिहार में अभी इसी साल चुनाव हुए, ठीक है, अभी रिसेंटली खत्म हुए बिहार में, हुए ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2020 में जो इलेक्शंस हुए, अब नेक्स्ट इलेक्शन कब होंगे बिहार में, आप बताओ, स्टेट इलेक्शंस कब होंगे बिहार में नेक्स्ट? 2025. हाँ, 2000, Ma'am, 2025. वेरी गुड, 2025, वेरी गुड। ओके, नाउ ये इलेक्शंस जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं मतलब जैसे जो इलेक्शंस जो अलग अलग समय में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होते हैं उनको हम जनरल इलेक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। और कई बार जो इलेक्शंस होते हैं वो किसी एक चुनावी क्षेत्र जो होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है, उसमें कोई वैकेंसी जब क्रिएट हो जाती है किसी भी रिप्रेजेंटेटिव की डेथ की वजह से या रेजिग्नेशन की वजह से, तो वहां पे बाय इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। ये बाय इलेक्शंस जो होते हैं या मिड टर्म इलेक्शंस जो होते हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। मिड टर्म इलेक्शंस तब होते हैं जब किसी भी जब स्टेट गवर्नमेंट या लोग जो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके जो गवर्नमेंट है उनको जब डिसॉल्व कर दिया जाता है तब मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। और बाय इलेक्शंस कब होते हैं? बाय इलेक्शंस तब होते हैं जब किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई वैकेंसी क्रिएट होने पे, चाहे डेथ की वजह से या रेजिग्नेशन की वजह से, जब वैकेंसी क्रिएट होती है तो उसके लिए हम बाय इलेक्शंस करवाते हैं। दिस मच इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमारे कंट्री में Yes, इलेक्शन का ma'am. हमारे कंट्री में इलेक्शन का बहुत सिंपल प्रोसेस है, बिल्कुल भी जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जैसे ही इलेक्शन की डेट पास आती है, जैसे हमें पता है कि भाई हमारे स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो 2017 में इलेक्शंस हुए, तो 2017 के बाद अब इलेक्शंस कब होंगे हमारे यहाँ पे? Ma'am, 2022. हाँ, 2022 में हमारे यहाँ 2022. तो स्टेट गवर्नमेंट में अब 2022 में इलेक्शंस होंगे, ठीक है। अब जब 2022 में इलेक्शंस होंगे तो जब इलेक्शन हम सबको पता है कि इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो होता है उसका काम होता है डेट्स अनाउंस करना। वो बताता है कि भाई इस तारीख में यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात हम कर रहे हैं, जो पूरे स्टेट को जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में एरियाज में डिवाइड कर देते हैं फॉर द इलेक्शन पर्पसेस, तो उन एरियाज में अलग अलग डेट्स में जो है इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। और इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अंडरटेक करती हैं। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज अंडरटेक करती है, एक तरफ हमारा जो इलेक्शन कमीशन होता है वो इन चीजों को चेक करता है, ठीक है। अब वो कैसे चेक करता है? इलेक्शन कमीशन क्या करता है, सबसे जैसे इलेक्शंस अनाउंस होते हैं सबसे पहले वो क्या करता है, किस पे फोकस करता है? अपनी वोटर्स लिस्ट पे। वो देखता है कि हमें अपनी वोटर्स लिस्ट को कैसे अपडेट करना है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग 80 साल के रहे होंगे या 55 साल के, 50 साल के या 60 साल के रहे होंगे, हो सकता है अगले 5 साल के बाद उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया हो, डेथ हो गई हो, ठीक है। हो सकता है कि वो लोग अभी भी बने हुए हो और 18 इयर्स की एज बहुत सारे लोगों ने अटेन कर ली हो, तो वो नए वोटर्स जो है वो हमारी वोटर्स लिस्ट में ऐड हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन का काम सबसे पहला ये होता है कि जैसे इलेक्शन की डेट्स अनाउंस करते हैं, वो इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस होती हैं, उसके बाद सबसे पहले जो काम वो लोग करते हैं, वो लोग वोटर्स लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं।
जितने भी जो लोग नए ऐड ऑन होने वाले होते हैं उनको ऐड ऑन करते हैं, और जो लोग जिन लोगों की डेथ हो जाती है या बीमारी की वजह से कुछ लोग जो गुजर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, उनके नाम जो है वो डिलीट कर दिए जाते हैं फ्रॉम दी लिस्ट, और लिस्ट को अपडेट किया जाता है। ठीक है भाई, हर साल कितने सारे लोग जो है 18 साल के होते होंगे, हर साल कितने लोग मरते होंगे, है ना। तो इन चीजों को अपडेट रखने के, इन चीजों को अपडेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीज अपडेट नहीं होंगी तो आप कैसे पता लगाओगे कि भाई हमारी वोटर्स लिस्ट जो है वो अपडेटेड है कि नहीं है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन का सबसे पहला काम इलेक्शन अनाउंस करने के बाद वोटर्स लिस्ट को अपडेट करना होता है। ठीक है, उसके Excuse साथ, me, ma'am. हाँ जी बेटा। Ma'am, from where do they get the data? बेटा सारे जितने भी जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वहां पे इनके ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, और वहां से वो डाटा कलेक्ट करते हैं। एंड मोर ओवर ये जो डाटा होता है, ये आपको पता है ना, पॉपुलेशन का जो सेंसस होता है, पॉपुलेशन काउंटिंग जो होती है एवरी 10 ईयर्स में होती है, पॉपुलेशन सेंसस जो होता है हमारे कंट्री में, है ना। Yes, ma'am. तो उन ये लोग जो डाटा कलेक्ट करते हैं ये सारा साल, मतलब ये 10 ईयर्स तक रेगुलरली जो है ये अलग अलग एरियाज में जाके डाटा कलेक्ट करते हैं, और उस डाटा को ये प्रोवाइड कराते हैं थ्रू, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है सिस्टम, तो ये अपने कंप्यूटर्स में फीड कर देते हैं, और वहीं से इन लोगों को जो है ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और जहाँ जिन एरियाज की इन्फॉर्मेशन इनको नहीं मिलती है, वहां पे इनके रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं और वहां से वो डाटा कलेक्ट करके लेके आते हैं। अब जब लिस्ट, वोटर्स लिस्ट अपडेट हो जाती है, तो उसको एक बार और रेक्टिफाई किया जाता है, जस्ट टू काउंटर चेक। घर घर जाके जो है लोगों से पूछा जाता है कि भाई आपका ये लोकेलिटी है, आपका ये वार्ड नंबर है, आप इस इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्ट हो, तो आप बता दो कि आपका नाम इस लिस्ट में है कि नहीं है, और अकॉर्डिंगली जो भी होता है प्रोसीजर वो फॉलो करते हैं। ठीक है, अब क्यों वोटर्स लिस्ट अपडेट करना, क्यों, हाँ जी बेटा बोलो। somebody was saying something. ओके, तो ये वोटर्स लिस्ट अपडेट करना जरूरी इसलिए बेटा, क्योंकि हम अपनी कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं, और हम ये भी कहते हैं 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। यदि हम इसको फॉलो, अगर हम वोटर्स लिस्ट अपडेट नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ वोटर्स, एमिनेंट वोटर्स, जिन जो देखो एक एक वोट कीमती होता है ना, हम लोग कहते हैं ना कि एक एक इंसान डिफरेंस बनाता है, तो एक वोट जो है बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। वो एक जिस दौरान इलेक्शंस होने थे उस दौरान एक बड़ा प्यारा सा व्हाट्सएप पे जो है मैसेज भी सर्कुलेट हो रहा था कि एक क्लास में कुछ बच्चे जो होते हैं वो, मतलब एक क्लास में बच्चे आते हैं, एक मॉनिटर जो होता है उनको पनिश करके बाहर कर देता है कि भाई तुम लोग बहुत बात कर रहे हो। तो ये लोग जो 3 बच्चों को बाहर निकाला जाता है क्लास से, वो बड़े इरिटेटेड होते हैं कि भाई ये जब तब हमारे नाम दे देता है। तो उनसे पूछा जाता है कि जब इनको मॉनिटर बनाया गया था तो आप कहाँ थे? तो बोले हमने नहीं बनाया इनको मॉनिटर्स। तो बोले तब आप कहाँ थे? बोले हम तो घर पर थे, हम उस दिन छुट्टी मना रहे थे हम। तो बोले जब आप छुट्टी मना रहे थे और फिर आपका मॉनिटर क्लास में बन गया, तो आप शिकायत क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब आपका पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड था तब तो आप आए नहीं, तब तो आप घर पे आराम कर रहे थे। अब जब ये मॉनिटर बन गए हैं एंड दे आर, इफ व्हेन दे आर डूइंग थिंग्स, तो आप उनके काम पे जो है क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि काम पे क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, पहले अपने आप को एक पार्टिसिपेंट बनाओ, टू एंश्योर कि आप जिसको भी लेके आ रहे हो एज अ रिप्रेजेंटेटिव वो बहुत सही हो, बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो ये इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं हमारे कंट्री में, जो भी सिस्टम हम फॉलो करते हैं उसमें हमेशा देयर आर सर्टेन पीपल दोज हु ऑलवेज क्रिटिसाइज। तो क्रिटिसिज्म इज वेरी इजी, आप किसी को भी चीज को लेके क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो, बहुत आसान होता है क्रिटिसाइज करना। बट हम जब जो चीज क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम उसके पीछे ये नहीं देखते हैं कि व्हाट इज आवर मोटिव, हमारा मोटिव उस क्रिटिसिज्म के पीछे क्या है, चीजों को बेटर करना है या चीजों को और खराब करना है। ठीक है, जैसे हम लोग एज टीचर्स वी टेल यू पीपल कि भाई आप यहाँ पे सही करो, ये चीज सही करो, वो चीज सही करो। अब जैसे हमने चिराग और अंगद को कहा कि भाई आप लोग क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, बहुत दिनों बाद दिखिए क्लास में, तो इसका रीजन ये है कि वी नो कि दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट अटेंडिंग दीज क्लासेस, आई डोंट नो हाउ रिलीजियसली दे आर स्टडीइंग एट होम। ठीक है, कुछ बच्चे हमें ये कहते हैं कि मैम हम वीडियोस देख लेते हैं और हम खुद से पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर आप कर रहे हो, अगर आप रिलीजियसली कर रहे हो इस चीज को, इट इज रियली वेरी गुड प्रैक्टिस। बट अगर आप क्लासेस भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ाई घर में भी नहीं कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हु इज गोइंग टू बी अफेक्टेड? हम में से कोई अफेक्टेड नहीं होगा, मतलब टीचर्स आर नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय इफ यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस। अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट बेटा आप ही की पढ़ाई पे आएगा। व्हेन यू विल गो टू योर नेक्स्ट क्लास, देयर यू विल फेस प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपने आपकी लाइफ का, आप ये सोचो इस पैराडेमिक की वजह से
1 साल का जो ये एक लैग बन गया है, ये बहुत मुश्किल से फुलफिल हो पाएगा, क्योंकि बहुत मुझे लगता है कि जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं उनमें देयर आर हार्डली 20-25% ऑफ पार्टिसिपेशन। और ये जो 20-25% ऑफ पार्टिसिपेशन है, ये वो उन बच्चों का है जो दोज हु अंडरस्टैंड कि हाँ क्लासेस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें क्लास ज्वाइन करनी है। हम घर में भी तो पढ़ाई कर सकते हैं, हम स्कूल क्यों आते हैं? स्कूल भेजने का पेरेंट्स का एक मोटिव होता है ना? तो सेम उसमें आप ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं आपकी, इसका भी एक मोटिव है कि आप लैग ना करें पीछे। अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे, आप अपडेट नहीं रहेंगे, तो आप अल्टीमेटली प्रॉब्लम आप ही को आने वाली है और किसी को नहीं आने वाली है। अभी प्री बोर्ड्स हुए बेटा, बच्चों ने मतलब बच्चे पता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, पहले प्री बोर्ड वाले दिन स्टूडेंट्स वर नॉट इन अ कैपेसिटी टू इवन राइट अ पेज विदाउट ब्रेक। मैम हाथ थक गए, मैम बैठ नहीं पा रहे हैं, मैम अजीब सा लग रहा है। तो बिकॉज दे वर नॉट इन अ प्रैक्टिस, नहीं क्लासेस अटेंड कर रहे थे, नहीं कुछ काम कर रहे थे, रिटर्न वर्क आप कर रहे थे। तो अगर आप रिटर्न वर्क नहीं कर रहे हो, आप क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो, तो वो जो एक पेशेंस लेवल है, जो बैठने का जो एक आपको चाहिए, वो पेशेंस कहाँ से लेके आओगे आप? आपको 3 घंटे एग्जाम में बैठना होता है। कुछ बच्चे बेचारे इतना परेशान हो गए कि खड़े हो गए बैठे बैठे। हमने कहा बेटा खड़े मत हो, ये बैठ जाइए। तो बोले मैम हम बैठ नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत अजीब लग रहा है, बैठा जा ही नहीं रहा है, घर में हम इतने घंटे बैठते ही नहीं है लगातार ऐसे। तो ये प्रैक्टिसेस एग्जाम में आप अच्छे से कर सको और परफॉर्म, इसलिए आपको क्लासेस आपसे की हो रही हैं। जानते हैं आप लोग बेटा बहुत लकी हो, इतनी क्लासेस आपकी रेगुलर हो रही है। देयर आर मेनी चिल्ड्रन दोज हु आर फेसिंग प्रॉब्लम। हम कितने लोगों से कांटेक्ट में है, दोज चिल्ड्रन दे से कि आप हमें अलग से पढ़ा दो क्योंकि हमारी क्लासेस हो ही नहीं रही है, हमारा स्कूल को इनिशिएटिव ले ही नहीं रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ बरेली, आई एम टॉकिंग ऑफ अदर स्टेट्स जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हो ही नहीं रही है। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे बस बच्चों को क्या करा दिया जाता है, वर्कशीट दे दी जाती है कि बच्चे कर लेंगे घर से बैठ के। भैया आपने उनको पढ़ाया नहीं, आपने उनको समझाया नहीं, बच्चे खुद से कैसे कर लेंगे वर्कशीट? दे आर फेसिंग सो मच ऑफ प्रॉब्लम कि उनको लग रहा है कि इससे बढ़िया तो क्लासेस फिजिकली शुरू हो जाए, वो ज्यादा बेटर है। तो आप लोग, मुझे लगता है कि बहुत मायनों में आप किसी से जाके पूछना सिटी में बाहर कि उनकी क्लासेस किस तरीके से हो रही है और कितनी रेगुलरिटी से हो रही है और कब से हो रही है। मेनी ऑफ दी स्कूल्स हैव स्टार्टेड देयर क्लासेस वेरी लेट। आप लोग तो फिर भी बहुत लकी हो कि मार्च से आपकी क्लासेस हो रही हैं। लाइव क्लासेस भले ही लेट शुरू हुई हो, बट अदरवाइज जो क्लासेस हो रही है वो बहुत रेगुलर बेसिस पे हो रही है। तो जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड करी होंगी उस टाइम पे भी, इस टाइम पे भी उनका पेशेंस लेवल एक तो बड़ा अच्छा होगा। दूसरा, उनको उनकी जो राइटिंग कैपेसिटी होगी वो होगी क्योंकि उन्होंने रिटन वर्क करा होगा डेफिनेटली, है ना? तो ये क्लासेस बेटा दे आर फॉर यू ओनली। अगर आप नहीं अटेंड करोगे तो आप ही का नुकसान है, हमारा नुकसान तो कुछ भी नहीं है इसमें बच्चे। ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू दी टॉपिक। इतना आपको समझ में आया? वोटर्स लिस्ट समझ में आई कि क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, उसका क्या पर्पस है? मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब जब वोटर्स लिस्ट बन जाती है उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज का क्या काम होता है? जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, रुक जाओ टॉपिक लेके आ जाए पहले आप। हाँ, जब नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स होता है, वोटर्स लिस्ट जो है अपडेट होने के बाद जो आपके इलेक्शन कमीशन होता है वो नॉमिनेशन निकालती है फॉर द कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स होते हैं, जो दोज हु यू नो डिजायर टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, वो अपना नाम जो है नॉमिनेट कराते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं, अपनी सारी डिटेलिंग्स देते हैं उसके अंदर। और ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डिटेलिंग भर दो और आपको इलेक्शन कमीशन जो है वो चूज कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। आपकी नॉमिनेशन होने के बाद उसकी वेरिफिकेशन होती है। आपने जो भी डिटेलिंग्स उसमें भरी है अपने उसमें नॉमिनेशन पेपर्स में, उनका वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, फिर वेरिफिकेशन होने के बाद जो है आपको कहा जाता है कि हाँ ठीक है, आपके जितने भी आपने डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने सबमिट करे हैं वो सब अप टू द मार्क है। अब आप जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। अब इसमें एक चीज होती है कि जो नॉमिनेशन होती है ना कैंडिडेट की नॉमिनेशन, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कुछ बहुत खास क्राइटेरिया होता नहीं है। ठीक है, ऐसा बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्यों नहीं होती है, मतलब क्यों हम हर जगह पे अगर हम जॉब करने जाते हैं तो हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, बट व्हाई नॉट इन इलेक्शंस? तो इलेक्शन में ऐसा माना जाता है कि जरूरी नहीं है
कि एजुकेशन कोई बेसिस हो किसी भी लीडर को एग्जिस्टेंस में लाने का। कई बार ऐसा होता है जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं या जिनकी कोई एजुकेशनल डिग्री उनके पास नहीं होती है, वो बहुत अच्छे नेता होते हैं, बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं, है ना। और कई बार बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी जो है बहुत अच्छी डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं किसी को। Ma'am, like Mr. Narendra Modi. बट ही इज वेल क्वालिफाइड, ही इज एमए पॉलिटिकल साइंस भाई। And ma'am, Arvind Kejriwal, ma'am, IITian. हाँ, he is an IITian. He was into I think revenue department. तो ये हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जिनको पता है कि सिस्टम में क्या कमियां हैं। ये लोग वो हैं जो सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स हैं, जो लूप होल्स हैं, उनको कवर करने के लिए आए हैं, उनको बेटर करने के लिए आए हैं। बिकॉज ये लोग ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनका जो होराइजन है, इनका जो आप ये कह लो कि ये जिस तरीके से चीजों को सोच सकते हैं, मेरे ख्याल से दूसरे लोग नहीं सोच पाते, है ना। आप देखो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत सारे ग्राउंड्स पे बहुत सारी चीजों को इतनी माइन्यूटली एनालाइज करा और उन पे वर्क करा, है ना। आप ये देखो कि मुझे नहीं लगता है कि कभी किसी गवर्नमेंट ने जो है सेल्फ डिपेंडेंसी के ऊपर जो है बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो है वो अपने ले आउट करे होंगे। बट हमारे कंट्री में इस समय जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा जो है क्रिएटिविटी को और आपकी सेल्फ डिपेंडेंसी को जो है बहुत ज्यादा जो है वो इनहेंस कर रही है। वो ये चाहती है कि आपकी जो भी क्वालिटी है आपके अंदर, आप उसको जो है और बेटर करें, है ना। जैसे आप वो एक निकाला था, इन्होंने एक स्कीम निकाली थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है। इट वाज रिलेटेड टू दैट क्रिएटिविटी वाला थिंग ओनली। कुछ एक कैप्शन था उसका, बहुत अच्छा सा था, जिसमें बहुत सारे मतलब इतने आपने वो 3 इडियट मूवी देखी है फुनसुक वांगडू के बारे में? ही इज अ रियल कैरेक्टर। तो एक Yes, ma'am. हाँ, ऐसे मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की हमें जरूरत है जो कि अपनी पढ़ाई को बहुत ही फाइनली इम्प्लीमेंट कर सके। अगर उन्होंने पढ़ाई करी है तो ये नहीं हमें लकीर का फकीर नहीं होना है। हमें ये नहीं देखना है कि भाई उसमें ऐसा लिखा तो ऐसा नहीं, ऐसा ही होगा। आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचो, आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अगर करते हो तो बहुत सारी चीजें अच्छी होके आती हैं। और ऐसे ही लोग जो हैं वो अपना एक पोजीशन बनाते हैं, ऐसे ही दे क्लाइम सक्सेस। आप उन्हीं लाइंस पे अगर आप काम करोगे जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी कुछ नहीं होती है। उसमें आप अपने जो क्वालिटीज है उनको आप यूटिलाइज नहीं कर पाते हो, है ना। इसीलिए लोग आज की डेट में देखो कितने इन्वेंशन हो रहे हैं, कितनी नई नई चीजें आ रही है एग्जिस्टेंस में। एवरी डे समथिंग और द अदर इज कमिंग अप। वो इसलिए क्योंकि और फिर आप देखो जब से ये लॉकडाउन लगा है, जब से पेंडेमिक हुआ है, जब से हम लोग कन्फाइंड हुए हैं इन दी हाउसेस, तो बच्चों में, बड़ों में, हर किसी में जो है एक वो जिसे कहते हैं ना कि हर चीज को अलग तरीके से करने का एक कीड़ा दिमाग में आता है कि भाई इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, बेटर वे, बढ़िया तरीका कौन सा है। भाई जो भी डिफाइंड लाइंस है उन पे तो हम काम कर ही रहे हैं, जो अनडिफाइंड लाइंस पे है उन पे अगर हम काम करते हैं तो तब हम कहाँ पे हमें मतलब हम क्या चीज हमें बेटर मिलती है।